امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی قیادت ماری جا چکی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایران کا معاملہ جلدی نہیں چھوڑیں گے تاکہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ہم نے ویتنام میں 19 اور عراق میں 12 سال گزارے، ایران میں صرف 6 ہفتے گزارے، اور کہا جا رہا ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ روس 1 سال کی جنگ لڑنے گیا اور 4 سال سے لڑ رہا ہے، ہم 8 جنگیں ختم کرا چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کی دی گئی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کو مناسب تجاویز پیش کرنی چاہیے، صرف اچھے معاہدے کو قبول کروں گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، فون پر مذاکرات کر رہے ہیں، ایرانی قیادت میں اختلاف ہیں، وہ کنفیوز اور ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ معاہدہ یا تباہی، ایران کے پاس 2 آپشن ہیں، میں پہلے آپشن کو ترجیح دوں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کا ہمارے ساتھ تعاون جاری ہے، ایران کے حوالے سے 1-2 روز میں اہم پیش رفت ہوگی۔ ایران نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل کبھی ختم نہیں کیا، کسی دباؤ یا زبردستی کو قبول نہیں کریں گے، جنگ سے مقاصد حاصل نہ کر سکنے والے شرائط مسلط نہیں کر سکتے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اس سے خوفزدہ بھی نہیں، قومی وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش پر بھرپور رد عمل دیں گے، سفارتکاری منطق اور عقل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، وفاقی حکومت کا دعویٰ۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا جنگ کی وجہ سے گیس نہیں مل رہی تھی، عوام کے لیے مہنگی گیس خریدنا پڑی۔ گزشتہ روز گیس آنے کے بعد لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے، مجبوری میں فرنس اور ایندھن سے پلانٹس کو چلانا پڑا۔ پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ کراچی، پشاور، لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ، لیاری، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن، صدر سمیت مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں 6 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو کا لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ، شہریوں کی 3 سے 4 گھنٹے بجلی بندش کی شکایات۔ ایران نے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دی۔ ایرانی میڈیا نے کہا ثالثوں کے ذریعے نئی تجاویز جمعرات کو بھجوائی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، سفارتی بات چیت کی تفصیلات بیان نہیں کرتے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان ہی باقاعدہ ثالث ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مذاکرات میں بہت سے ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، باضابطہ ثالث پاکستان ہی ہے۔ ایران مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہے، مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف امریکی کارروائی کو سیلف ڈیفنس قرار نہیں دیا جا سکتا، امریکی کارروائی ایران کے خلاف جارحیت تھی۔ امریکی انتظامیہ نے کہا امریکہ اور ایران میں لڑائی ختم ہو چکی ہے، جنگ بندی کے بعد کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ رائٹرز کے مطابق بیان وار پاور سے متعلق کانگریس کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر سامنے آیا۔ صدر ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے جمعے تک کا وقت ہے، جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے رجوع کرنا ہوگا، جنگ کی وجوہات پیش کرنی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی 1 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی، کوئی بھی متاثرہ شخص کمیٹی کے سامنے پیش ہو سکے گا۔ وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک انتظامیہ کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برینٹ کروڈ کی قیمت $108 فی بیرل تک ریکارڈ، امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی، اماراتی خام تیل کی $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ دھمکی آمیز لہجہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹیں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، ترکی، قطر کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مصر، عراق، آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے بھی گفتگو۔ عباس عراقچی نے جنگ کے خاتمے اور ایران کے تازہ موقف سے آگاہ کیا۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात, अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत के लिए तुर्क सदर का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार का अमन को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने मंगूपीर टाउन में जारी डेडिकेट्स रोड के काम का मुआयना किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। मेयर कराची ने कहा जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तकरीब में सदर आसिफ जरदारी की भी शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सदर मुमलिकत 5 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फीट होना लाजमी करार। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायद का ऐलान। 30 दिसंबर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा छतों पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद की इजाजत नहीं होगी। ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर इमारत के मालिकान, इवेंट के मुंतजिमीन जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मुत्तहिदा के सिवा किस जमात में इंट्रा पार्टी होते हैं। असल मसला मुल्क के इलेक्शन का है जो ठीक होने चाहिए। मुल्क में 75 साल से स्टेटस क्वो है। मुल्क की सियासत में आम आदमी के लिए रास्ते महदूद कर दिए गए। ईरान जंग के बाद अबनाए हुर्मुज़ में आमद और रफ्त में 90% से जायद कमी। बरतानवी नेवी ने कहा अबनाए हुर्मुज़ में 2 दर्जन से जायद जहाजों को नुकसान पहुंचा। खलीज फारस में 20,000 से जायद मल्लाह फंसे हुए हैं। बरतानवी नेवी की बहरी क़ज़ाकी के वाक़यात बढ़ने की भी वार्निंग। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के जहाज पर कब्जा किया, ये मुनाफा बख्श काम है, लगता है कज़ाकों की तरह है। अब नाए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सऊदी अरब और रूस में जितना तेल निकलता है हम अमेरिका में उससे दुगना निकाल रहे हैं। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त हो चुका। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला जा रही हैं। मेरे आने से पहले अमेरिका खला में चीन रूस से पीछे था, अब बहुत आगे है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान जंग खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अपील। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा बहरान के नताइज हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। अब नाए हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। ऐसा हाल तलाश करें तो तबाही के दहाने से पीछे हटा सके, अमन लाए। अमेरिका के ईरान जंग पर यूरोप से इख्तलाफात। जर्मनी से 5,000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक इनखला आइंदा 6 से 12 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब अमारात की अपने शहरियों के ईरान, लेबनान और इराक के सफर पर पाबंदी। वजारत खारिजा ने कहा खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई। मुतालिका ममालिक में मौजूद शहरियों को वापसी की हिदायत। बाजोड़ के इलाके मामूंद में खारिजियों का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर हमला, 3 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ ने कहा अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में मार्टर गोले भी फायर किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अफगान तालिबान की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा शहरियों को दानिस्ता निशाना बनाने का सफाकाना सिलसिला नाकाबिल कबूल है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना पस्त इखलाकी मायार को जाहिर करता है। पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाता है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 14% से बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल, आटे, आलू समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती हुई, 24 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इजरायली फौज ने रिहा कर दिया। इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर सवार सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार किया था। इसहाक डार का रिहाई में मदद पर तुर्क और यूनानी हुकूमत का शुक्रिया। पंजाब में बादल बरस पड़े। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश। कायदाबाद में शदीद तूफानी बारिश के साथ यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। सरगोदा में भी गरज चमक और ठंडी हवाओं के साथ बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप,
बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने की भी इत्तलात। मुल्क भर में 4 मई तक बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा मगरबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक बरकरार रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची डिफेंस में खातून पुलिस ऑफिसर के बेटे का सब इंस्पेक्टर से मुबैना झगड़े का मामला, मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नौजवान रहा। तहकीकाती कमेटी ने स्नैप चेकिंग पर मामूर सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मार्का हक में अजीम फतह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की शानदार फतह को ता क़यामत याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत ने कहा हम जंग नहीं चाहते। तकरीब से खिताब में मजीद कहा भारत दहशतगर्दी फैलाने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तानी कौम का हर तबका दहशतगर्दों से लड़ने के लिए कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की सलामती हमें मुकद्दम होनी चाहिए। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता के 4 ममालिक को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा देने की मंजूरी दे दी। इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फौजी सौदे मंजूर। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात मिलेंगे। ये मंजूरी खित्ते में कशीदगी और इत्तेहादी ममालिक की दिफाई ज़रूरियात के तनाजुर में दी गई। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन से दरामद गाड़ियों पर टैरिफ 25% बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दरामद होने वाली कारों और ट्रकों पर अगले हफ्ते से टैरिफ बढ़ेगा। अमेरिका के प्लांट्स में कारें और ट्रक बनाएं तो टैरिफ नहीं होगा। अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा 30 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ भी नई पाबंदियों का हुक्म दे दिया। क्यूबा हुकूमत के साथ काम करने वाले गैर मुल्की बैंकों और इमिग्रेशन पर पाबंदियां आयद। कानूनी, तवानाई के शोबों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अफराद शामिल। लंदन में दूसरी जंगी अजीम का 2.5 टन वजनी बम बरामद। रॉयल नेवी और बरतानवी फौज के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने बम तल्फ कर दिया। बम तल्फ करने से पहले गिरदोनवाह के इलाकों को खाली करवाया गया।